Hello students, today we will start electric field and after that we will discuss about electric potential. Now what is electric field? The region in which a charged particle placed at any point experiences a force is called electric field. मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड हमारा एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसमें कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है एंड दिस फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive charge. See what is the intensity of electric field? The electric field intensity at any point in an electric field is equal to force experienced by unit positive test charge q naught placed at any point. Means if we are considering we have a unit positive charge means value of q is equal to 1 coulomb. If we are taking a test charge of 1 coulomb and we are placing that charge in electric field of any other charge q, means unit charge q naught को हम दूसरे चार्ज q के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं. नाउ इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स f. According to Coulomb's law, this F will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square in the direction of r. Means आपका क्या होता है, along the line आपका वर्क करता है फोर्स. तो आपका फोर्स का वैल्यू ये हो गया है 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square. Now electric field E is equal to F by q naught. Now put this value of F and divide by q naught. When we will divide this value of F by q naught, then this q naught will be cancelled out. Then finally we will get E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Now in vector form we can write like this: vector E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q vector r by r cube. Why? Because the direction of E will be equal to the in the direction of r cap, same as force F. So this value of r cap will be equal to vector r by r. So finally we will get there will be vector r by r cube. Its SI unit will be Newton per coulomb. Why? Because unit of F is defined as F by q naught. Unit of F is Newton and unit of q naught is coulomb. So unit of E will be Newton per coulomb. Now for showing the direction of field, see there will be चार्ज के अराउंड आपका एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आपका वर्क करेगा. अब उस फील्ड में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? दैट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर. की आपका एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो उस फील्ड की इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे. ठीक है. अब उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है फील्ड का? दैट डायरेक्शन शोज बाय सम इमेजनरी लाइंस. हम लोग कंसीडर करते हैं इस फील्ड में कि हमारे पास कुछ इमेजनरी लाइंस हैं और उन इमेजनरी लाइंस के जरिए हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम देखते हैं. एंड नाउ these imaginary lines known as electric lines of forces. एंड ये लाइन क्या शो करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आप इन लाइंस के टर्म में कैसे समझेंगे? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए वी आर कंसीडरिंग अ यूनिट एरिया. यूनिट एरिया मीन्स योर एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. तो 1 यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही हैं. एंड दैट value gives the magnitude of electric field. And these electric field lines always travel from positive value to negative value. इनकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? +q to -q. मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, these lines will diverge from +q charge and they will converge at -q charge. Here it is indicated. See, direction of electric field lines will be from +q charge to -q charge. इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं. The direction of electric field will be from higher potential to
लोअर पोटेंशियल। प्लस क्यू चार्ज का आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एंड माइनस क्यू चार्ज आपका क्या है, लो पोटेंशियल है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करता है किसी भी पॉइंट पे। अगर आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो मीन्स वहाँ पे दो डायरेक्शन है, और एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज विल नेवर क्रॉस ईच अदर, it is not possible. So here we done electric field, about electric field and electric field lines. नाउ देखिए, आपकी किसी चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर फील्ड में ही आपका चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे कुछ इमेजनरी लाइंस हम लोग एज्यूम करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम लोग किसे, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। आपका यूनिट एरिया से जितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ना अब देखिए, जो कोई चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, दैट चार्ज वी विल कंसीडर एट इन्फिनिटी। मीन्स अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी आर कंसीडरिंग इफ वी हैव अ चार्ज क्यू, एंड इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई दूसरा चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ठीक है, एंड इट इज क्यू नॉट। अब इस चार्ज को बाहर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, और हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें दिस चार्ज इज ऑफ 1 कूलम, दिस चार्ज इज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वी आर कंसीडरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बाहर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हम वर्क कराते हैं, that work known as electric potential. Now what is electric potential? The electric potential at any point in an electric field is defined as the work done on the system against the electric force in moving and positive and unit positive test charge from infinity to that point. Means आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए किसी भी पॉइंट पे जो आप वर्क डन करते हो, जो आप वर्क डन कराओगे, दैट वर्क डन विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज। एंड नाउ इट्स एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। Now we know what is value of W. Work done is equal to force into displacement, and work done is the dot product of force and displacement. आपका जो work done होता है वो आपका force and displacement का dot product होता है, and we have formula vector A dot vector B equal to AB cos theta. So vector F dot vector dr will be written as F dr cos theta, and here theta is equal to 180 degree. Because why? Because we are bringing charge opposite to the direction of field. एंड अगर आपकी दो चीज़ों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक का डायरेक्शन ऐसा और एक दूसरे का डायरेक्शन ऐसा, मीन्स हियर वी आर मेकिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री. सो हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री वी नो इट विल बी इक्वल टू 1. So finally we will get W equal to minus F dr, and value of F we know. Here we define electric field E equal to F by Q naught. So value of F we can write Q naught E. Here we are using this minus sign. This minus sign, why we are using this minus sign? This minus because the direction of electric field and the direction of doing work is opposite. हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, एंड वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फील्ड. डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज लाइक दिस, and we are doing work against the direction of field, so this value will be negative here. That's why we are using here minus sign. Now we know value of E. अभी हम लोगों ने वैल्यू E की निकाला है. E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. हमने ये वैल्यू निकाला E की. Now we will put the value of E here, and then we will get formula minus integration of infinity to R 1/4 pi epsilon naught Q by R square, and in multiplication we have Q naught dr. Now here we will take
minus q naught q by 4 pi epsilon naught common, and we will integrate 1 by r square from infinity to r. Why we are taking infinity to r? Because we are bringing charge from infinity to the particular point which is at distance r from the center we are considering. So we are taking here limit from infinity to r, and we know integration of 1 by r square dr, this value will be equal to minus 1 by r, and we will put the limit from infinity to r. Then finally we will get formula 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r. This is value of w, this is value of w, and value of v will be equal to w by q naught. Then we will multiply this value of w by q naught, then this q naught will be cancelled out, and we will get value of v equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Now what will be SI unit of v? V is equal to w by q naught. SI unit of w is joule, and SI unit of charge is coulomb. Then its SI unit will be joule per coulomb, and this value will be equal to volt. So SI unit of electric potential is volt. It is represented as V, and it is a scalar quantity. Now we will find the dimension of V. How we will find the dimension of V? The dimension of W is equal to m L square T minus 2, and dimension of Q is 80. These values we know. So dimension of V will be equal to m L square T minus 3 A minus 3. We will, from using the dimensional formula, we can get this value, and in earlier classes we done all the things. We know how we have to find this value. Dimension of Q is equal to 80. Why dimension of Q will be equal to 80? Because we have formula Q equal to IT, and dimension of IT will be equal to 80. So we will put that value, and finally we will get this value V equal to, dimension of V equal to ml square T minus 3 A minus 3. तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है? देखिए, इसमें पूरा मैं आपको एक समरी दे रही हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है, ये हर जगह वर्क नहीं करता है। ऐसा नहीं कि चार्ज किसी भी डिस्टेंस पर है तो वर्क करेगा। एक प्रॉपर फील्ड होता है जहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है। इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को एज्यूम करते हैं फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो जो ये आपकी इमेजिनरी लाइंस जो फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एज्यूम करते हैं, इन लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ये आपके प्लस क्यू चार्ज से डाइवर्स होती हैं, मीन्स प्लस क्यू चार्ज से दूर जाती हैं। अब माइनस क्यू चार्ज की तरफ ये क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। वाई? बिकॉज इफ दीज लाइंस विल क्रॉस इट मीन्स देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दीज लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर। अब कोई पार्टिकल अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी आर कंसीडरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, दैट वर्क डन नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वाई डब्ल्यू बाई क्यू नॉट मीन्स वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, एंड दिस वैल्यू विल नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला। हमें पता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू पुट करा हम लोगों ने, फोर्स की वैल्यू पुट करा है। देन हमने इंटीग्रेशन किया है 1 बाई आर स्क्वायर का, एंड 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला में पता है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई आर, एंड व्हेन वी विल प्लेस वैल्यू ऑफ लिमिट देन वी विल गेट value of W, and when we will divide the value of W by Q naught, then we will get answer for expression of
electric potential V and its SI unit is volt, and this 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Why? Because W by Q naught, and unit of W is joule and unit of charge is coulomb, so its value will be joule per coulomb. And after that we will find dimensional formula of V. Thank you class. Hello students. Today we will discuss about potential difference, potential gradient and potential energy. In previous video we done electric potential. What was electric potential? Electric potential was the work done for bringing unit positive charge. Unit positive charge means charge of 1 coulomb from infinite to field, electric field of any charge. This work done was equal to electric potential. Now when charge will bring in electric field of any other charge, so in this electric field at different point potential will be different. Means if we are considering 2 point A and point B, at point A or at point B potential will be different, and we are considering potential at point A is VA and at point B is VB. Now this potential difference, if we are considering we have different potential at different point, और दोनों point के बीच में अगर आपको potential difference निकालना है, so that potential difference will be equal to the work done for bringing unit positive charge from one point to other point. Means आपको दो points के बीच में potential difference निकालना है. वी आर कंसिडरिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा. एंड हियर वी आर कंसिडरिंग, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में जो भी हम चार्ज कंसिडर करते हैं दैट चार्ज इज ऑफ 1 कूलम. तो 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दोज पॉइंट्स. So here we have definition: the work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from one point to the other point in an electric field is called the potential difference between those points. Means जो आपके दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 कूलम के चार्ज को कैरी कराने के लिए जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा. Here we have a very important relation, electron volt, relation between electron volt and joule. We have a relation 1 electron volt equal to 1.6 into 10 the power minus 19 जूल. न्यूमेरिकल्स में कई बार वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है, तो हमें उस वैल्यू को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है. तो जब हम उसको एसआई यूनिट जूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसको 1.6 इंटू 10 the power minus 19 जूल में 19 जूल से मल्टीप्लाई करना होता है. इसीलिए आपको यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट नोट दे के ये फॉर्मूला दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक वी है पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखिए आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है. मीन्स ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज क्यू का और यहाँ पे पॉइंट ए है पॉइंट बी है. मीन्स आपका हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंट होगा. तो आपके डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है मीन्स चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसी टर्म को मीन्स आपका हमने नाम दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. मीन्स पहले देखिए ये सब आपका एक सीक्वेंस में है, सब कुछ एक चैन में बना गया. पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, ये चार्ज है, हमें पता है चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है और किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करता है दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और दोनों पोटेंशियल, अब देखिए अब आपका जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है. तो आपका पॉइंट ए या पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनके बीच में जो वर्क डन होगा, दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा दैट will be equal to potential difference. And now we have one more term potential gradient. means आपका डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में जो भी चेंज होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. उसी एक टर्म को हमने नया नाम दे दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट.
After that we have to find a relation between electric field E and potential V. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V में रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट वी विल कंसीडर वी हैव फॉर्मूला dW इक्वल टू माइनस एफ डी आर. हमारा वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करें बिकॉज वी आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे. मीन्स हियर वी विल टेक माइनस साइन. वाई? बिकॉज वी आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड. सो दिस माइनस साइन indicating that we are doing work done against the field. And we have a formula E equal to F by Q naught. So from here F will be equal to Q naught E. तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F इक्वल टू Q नॉट E, एंड दैट वैल्यू वी विल प्लेस हियर F इक्वल टू Q नॉट E, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक Q नॉट अदर साइड. हम लोग Q नॉट को दूसरी साइड लेके आएंगे, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन में तो दूसरी साइड आके ये आपका डिवाइडेशन में हो जाएगा. नाउ हियर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू dW बाई Q नॉट, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस E dr. एंड वी नो वी हैव फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई Q नॉट. ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई Q नॉट. सो dV विल बी इक्वल टू dW बाई Q नॉट. वी विल पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ dW बाई Q नॉट, देन dV विल बी इक्वल टू माइनस E dr. एंड नाउ दिस वी कैन राइट dr का आपका इधर मल्टीप्लिकेशन में E के साथ, आप इसको dV की तरफ लेके आइए, इट विल बी इन डिवाइडेशन, एंड देन वी हैव दिस रिलेशन बिटवीन E एंड V. E equal to minus E dV by dr means electric field E is equal to potential gradient, but here we are using minus sign. Why? Because here we are doing work done against the field, and because of that direction of E will be from हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हमारा E का डायरेक्शन होता है, तो ये सिर्फ यही शो करता है कि हमारा E की जो डायरेक्शन होती है वो हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, जो कि हम जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे तो भी हमने ये बात डिस्कस किया था कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q, मीन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. आफ्टर दैट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया तो हमने ये चीज़ कंसीडर किया था वी आर टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें, इफ़ वी आर कंसीडरिंग वी हैव अ चार्ज Q, एंड नाउ हियर वी आर नॉट हैविंग अ नेसेसरी कंडीशन कि Q नॉट का वैल्यू 1 कूलम ही होना चाहिए. कोई भी चार्ज Q है इसकी वैल्यू 1 कूलम नहीं है. ये चार्ज हमारा अभी इन्फिनिटी पे है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे की अभी रिलेशन में नहीं है, ये दोनों अभी अलग अलग सिस्टम में हैं. इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर फील्ड में लाएंगे. क्यों हम इस फील्ड में लाएंगे? तो क्या होगा, जब हम ये पर्टिकुलर फील्ड में इस चार्ज Q नॉट को लाएंगे तो ये दोनों आपस में एक सिस्टम बनाएंगे. इन दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा. मीन्स नाउ दे विल बिहेव लाइक अ सिस्टम. दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करेगा. क्यों? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपके किसी भी चार्ज के अराउंड जिस फील्ड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है दैट फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चार्ज क्यों था? तो आपका वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क नहीं कर रहा था, तो मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था. अभी जब उन दोनों चार्जेस को हम एक दूसरे के पास लाते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो वहाँ पे अभी क्या करेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा. तो मीन्स अब चार्ज को जो एक दूसरे से बहुत दूर थे उनको एक दूसरे के पास लाने के लिए जो वर्क डन होता है वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. That work done will be stored as potential energy of this system. So here we have definition of electric potential energy. The electric energy of a system of charges is the work that has been done in bringing those charges from infinity to near each other to form the system. मीन दो चार्जेस जो पहले एक दूसरे से बहुत दूर थे, इन्फिनिटी पे थे, उन दोनों को एक दूसरे के पास लाकर एक जो नया सिस्टम फॉर्म होता है, इसके लिए जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. नाउ हाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो हमारा फॉर्मूला दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड
value of work done, and we know formula V equal to W by Q नॉट लिया था, बट हेयर वी आर टेकिंग चार्ज Q1 एंड Q2. हम यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, हमारा पहला चार्ज Q1 है और जो चार्ज पहले इन्फिनिटी पे था उसकी वैल्यू Q2 है. नाउ दिस V विल बी इक्वल टू W बाई Q2. सो W विल बी इक्वल टू Q2V. V इक्वल टू W बाई Q2. सो W विल बी इक्वल टू Q2V एंड V की वैल्यू हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 by R, and then we will put this value of V here, then we will get value of W, and this value will be equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R. आपकी W की वैल्यू आ गई. Now this W will be equal to potential energy U, and its SI unit will be joule. आपका एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है. So here we done potential difference, potential gradient and electric potential energy. After this, in next video we will discuss about electric dipole. Thank you.